what does SOS India basically do? आपकी कंपनी अभी क्या करती है? Basically, it stands for Solution Overall for Shipping. How big is the ship recycling business right now? अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि इंडिया में it has slowed down a little. Freight market is very very high because of कुछ जो issues international चलते रहते हैं, कभी कोई war चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है. तो आपका key area क्या है? First and foremost thing is green ship recycling. So what is green ship recycling? IMO की तरफ से एक regulation है, Hong Kong Convention. Okay. So basically, Hong Kong Convention is a guideline. It has got all the guidelines on how the ship recycling should be done. तो what are the most important thing जो तुम कॉलेज से लेके आए हो, जो तुमको लगता है कि जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी? I think people and people's skill. Welcome to another episode of My Next Radio. Today we have with us Ravi Sharma, who is from Mary Mumbai, and we passed out at the same time. When I passed out from DMIT Calcutta, he passed out from Mumbai campus. And he has chosen a very interesting path, just like me, of entrepreneurship in last few years. In today's episode, we'll decode his journey, discuss his journey, and maybe try to learn from it. And the language of this podcast is going to be English and Hindi. तो हिंदी में भी बात करेंगे हम लोग और इंग्लिश में भी बात करेंगे. जो अंग्रेज साथी हमारे सुन रहे हैं तो उनके पहले ही माफ़ी चाहूँगा और मैं वेलकम करूँगा रवि को. रवि, वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ माय नेक्स्ट रेडियो. हैप्पी टू हैव यू विद अस. Thank you Pratik. So as always, whenever a DMIT Mumbai or Calcutta alumni is with me on the podcast, I take them back to the before college days. So let us ask you, or I want you to share कि how did you get into MERI Mumbai, और उसके पहले आपकी जर्नी कहाँ से थी, आप कहाँ से हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको. Sure. Yeah. So hello everyone. My name is Ravi Sharma, and thank you Pratik for such a nice introduction. I'm very glad to be here. To be precise, if we want to start from the beginning, I belong from a small district called Hanumangarh in Rajasthan. I done my basic schooling there from Rajasthan board and Hindi medium. I'm a Hindi medium guy basically. हाँ, तो इस पॉडकास्ट को हिंदी में रखते हैं. Yeah. सब कंफर्टेबल है. So after 12th class, I went to Kota, part of his. हाँ, सारी फौज वहीं जा रही थी राजस्थान. सारी फौज वहीं जाती है, तो प्रोडक्ट ऑफ कोटा फैक्ट्री बेसिकली. अच्छा. सो वहाँ से मैंने IIT JEE के लिए 1 साल ड्रॉप का मैंने प्रिपरेशन किया था. एंड वहीं से ही कुछ एक फनी इंसिडेंट हुआ, या मे बी इट वॉज रिटन इन द स्टार्स. तो किसी तरह से आई वेंट टू द मेरी मुंबई. ओके. तो इट्स अ, और जो लोग नहीं जानते, जो हमारे सीनियर्स और जूनियर्स, मेरी मुंबई हैड जस्ट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ड्यूअल डिग्री. And so you can choose deck or engine side after 3 years of pursuing your degree. So I guess initial batches में से आप रहे होंगे, 2-3 बैच चल चुका होगा उसके पहले. I was in the 6th batch. 6th batch. Yeah. Okay. So basically, what happened is in those times in 2008, 7-8, TS Chanakya, Mary Mumbai, and Mary Calcutta. There were only 3 colleges under DG Shipping directly. And again, at that time, admissions was through IIT JEE only. So when I was in Kota, I used to prepare for SAT exams. I wanted to study abroad. थोड़े ऐसे ड्रीम्स थे कि क्या पता कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए तो हो जाए. बट उसका फॉर्म भी बहुत एक्सपेंसिव था. एट दैट टाइम 3000 रुपीज़ का कुछ फॉर्म था. तो IIT के बाद मुझे वो भरना था IIT के फॉर्म के साथ ऑब्वियसली. बट समथिंग हैपन कि मेरा जो रूममेट था, मेरा बचपन का दोस्त है, फॉर सम रीज़न उसके पास पैसे नहीं थे IIT का फॉर्म भरने के लिए उस टाइम पे, या कहीं लग गए, कुछ था, इश्यू था. तो व्हाट आई डिड इज़ कुछ पैसे मैंने उसको दे दिए. तो मेरे पास पैसे नहीं बचे कि मैं वो सेट्स का फॉर्म भरूँ. बट एट द सेम टाइम किसी ने मुझे फ्रेंड सर्कल से ही पता चला TS चाणक्य का फॉर्म आता है. एंड उस टाइम पे हमें ज़्यादा नहीं पता रहता है, बट वी कम टू नो कि अरे इसका इतना पैकेज जाता है, इसका इतना पैकेज जाता है. तो एट दैट टाइम द खबर वॉज कि TS चाणक्य का पैकेज इज़ द हाईएस्ट इन द मार्केट. नहीं पता क्या शेपिंग है, कुछ नहीं पता था.
तो बट उसका उस टाइम पे 700 रुपये का फॉर्म था, तो वो मैं अफोर्ड कर पाया और वो मैंने भर दिया। तो इस तरह से और बाई चांस कॉल भी आ गया, वहाँ गए, मुझे 3 ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। कलकत्ता, मेरी आई साइट भी ओके है, तो आई कुड चूज एनीथिंग। और वहाँ भी ऐसा हुआ कि पीपल सजेस्टेड कि एक में ही दोनों का हो जाएगा। एंड प्लस व्हेन यू आर स्पेशली जब आप जेई वेई की प्रेप करके आते हो, तब आपका पढ़ने वाला जो है ना वो बहुत हाई रहता है, यार मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। तो उस चलते उसी टाइम पे कुछ ऐसा डिसीजन हुआ। इट्स ऑल, आई थिंक इट वाज, फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। फैमिली, आई बेसिकली कम फ्रॉम ए लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली। पापा क्या करते थे आपके? पापा मेरे अभी तो रिटायर्ड है, बट ग्राम पंचायत में थे। उससे पहले, बहुत पहले वो टोल नाके पे थे गवर्नमेंट ने टोल्स बंद कर दिए। तो वो भी जुझारू टाइप के रहे हमेशा से। लाइक पास होते, बीए एमए तक किया उन्होंने विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट, किसी तरह लास्ट ग्रेड में भी पास होते होते पहुंच गए। तो उसी वजह से उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट ने जब टोल वगैरह क्लोज किए तो उनको ग्राम सेवक में, पंचायत विलेज सेक्रेटरी, यू नो, तो ही यूज्ड टू बी दैट। बट उतना कुछ पैसे का वो ऐसा कोई फ्लो नहीं था, तो ठीक है, ओके, एवरेज लाइफ थी, नॉर्मल। सो हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि सब लोग काउंसलिंग के लिए एमईआर मुंबई गए थे, एंड द कैंपस वाज सो ब्यूटीफुल। समुद्र के किनारे कैंपस है, एंड विथ स्टारी आइज वी इमेजिन कि विल सेल अराउंड वर्ल्ड इन ओशियंस। सबने सपने वहीं देख लिए थे। सो आप तो उस कैंपस में पढ़ाई की हो, so what was it like 3 years like? First year is, I guess, rigorously very tough ही रहा होगा। Yeah, definitely. और and we make friends for lifetime in college, and especially in a residential college which is paramilitary, it happens। आप कुछ तो मेरे भी बहुत करीब दोस्त, आपके भी दोस्त हैं, and that camaraderie is like you have never seen that kind of camaraderie anywhere, जो DMET और MERI ब्रदरहुड में रहती है। So, आप कुछ कॉलेज टाइम की आप अपनी जर्नी शेयर करिए। ओके, सो जब TS चाणक्य या नाम से फॉर्म आता था, LBS कॉलेज में काउंसलिंग होती थी। जब मुझे काउंसलिंग के लिए कॉल आया, तो एट दैट टाइम पापा जी कहीं बिजी थे, कोई देयर वाज नोबडी टू गो विद मी। तो मैंने कहीं से मुझे एक फ्रेंड मिला जिसको भी कॉल लेटर आया था, तो आई केम विद हिम, एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन मुंबई। और अगस्त में काउंसलिंग होती है, इट रेन्स एज हेल। इतनी बारिश राजस्थान मैंने तो कभी देखी भी नहीं थी, इतनी ज्यादा बारिश होती थी। एंड हम लोग कहीं काफी दूर रहते थे। फर्स्ट टाइम व्हेन आई रीच्ड एट द कैंपस, और वहां पर दैट प्लेस, इट्स लिटरली ऑन द सी साइड, एक दीवार के जस्ट पार में दरिया। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो अमेजिंग। लाइक ऐसा व्यू तो कोई बॉम्बे में अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लाइक जिंदगी में कोई ऐसा नहीं। आप इतना आपके बैच में रैगिंग नहीं हुई थी क्या? फर्स्ट ईयर, देन वो उस टाइम पे तो पता ही नहीं था ना, काउंसलिंग के लिए आए हैं। एंड जो मेरा जो फ्रेंड है, उनके जीजा जी थे, उनके साथ में हम लोग को जो ड्रॉप करने आए थे, बिकॉज दूर से आ रहे थे, बॉम्बे में हमें पता ही नहीं कहाँ कहाँ जाना था, फर्स्ट टाइम था। तो हमारे यहाँ कॉलेज में हाफ पैंट, स्टॉकिंग्स और वो वाली ड्रेस चलती है, लाइक डे टाइम में, ऑब्वियसली कैडेट वाली जो ड्रेस रहती है। एंड वी वर लाइक, तो जीजा जी कि ऐसा तुम्हारा भी रहेगा? नहीं, ये तो लगता है कोई ट्रेनिंग वेनिंग है, छोटे बच्चे, हम लोग थोड़ी ऐसे रहेंगे। तो बाद में पता चला। और हम लोग जैसे सीनियर्स थे, वो जो काउंसलिंग में हेल्प कर रहे थे, वो लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म वुड बी सीनियर्स होने वाले थे, सेकंड ईयर होने वाले थे हमारे, में थे। तो हम लोग तो उनसे ऐसे भैया अरे भैया ये बता दो, दे वर गिविंग अस, सी वी डू नॉट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम, हमें तो पता ही नहीं था ना क्या एक्सपेक्ट करने वाले। तो हम लोग तो ऐसे सोचते थे यार सब चलो ठीक है, सब भाई बंधु है, बढ़िया है, सब हो गया। कॉलेज में आ गए, हॉस्टल में पहुंच गए। जब पहली रात की नाइट चेक हो गई, जब 9 बजे के बाद वार्डन साहब चले गए, तब हमें पता चला वो जो लोग दिख रहे थे, जिनकी मुस्कानें थी, वो मुस्कानें कैसे बदल गई। और जो पैरामिलिट्री ट्रेनिंग थी वो स्टार्ट हो गई। एंड हाउ वाज द लाइक द कंप्लीट 3 इयर्स? कुछ चीज जो हम लोग सब लोग लेके आते हैं अपने कॉलेज से, सबके लिए डिफरेंट होती है। मुझे लगता है कि मेरी जर्नी काफी डिफरेंट थी बाकी लोगों से।
एंड तुम्हारी भी जर्नी डिफरेंट रही होगी. तो व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो तुम कॉलेज से लेके आए हो, जो तुमको लगता है कि जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी? आई थिंक पीपल एंड पीपल स्किल. पीपल स्किल. कुछ लोग ऐसे मिले, मतलब मेरे को सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग एंड प्राउड थिंग लगता है, हर एक तीनों ही कॉलेजेस में यार, मतलब ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, ऐसे ऐसे सीनियर्स, बैचमेट्स और जूनियर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन. कोई आर्ट्स में इतना अच्छा है, कोई म्यूजिक में इतना अच्छा है, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई रनर है, कोई किस चीज में चैंपियन है, कोई चेस में चैंपियन है, कोई टेबल, मतलब सो मेनी टाइप ऑफ पीपल. एंड इस कॉलेज का मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगता था कि जिस भी बैकग्राउंड से आप आए हो, चाहे आप वेल्दी बैकग्राउंड से आए हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, सबको एक लेवल पे ट्रीट होते हैं, सब सेम बन जाते हैं. और जो दोस्त आपके कॉलेज में बने हैं, तो आपके भी, मेरे भी, सबके जितने भी सबके दोस्त बने, आई थिंक वो आज भी सेम है. अगर 10 साल बाद भी मैं कल ही किसी से मिल के आ रहा हूँ, 10 साल बाद, एंड आई डोंट इवन फील लाइक ये 10 साल हो गए. ऐसा लग रहा है कल ही तो मिले थे यार, कल ही तो खेल रहे थे साथ में बास्केटबॉल. तो it's that is the most important thing I picked up from the college. Brotherhood. And then second thing is you can say कि कोई भी चीज को लीडरशिप क्वालिटी, यू कैन से. अभी सरप्राइजिंगली देखो यार, क्या है कि हमारे कॉलेजेस का जो स्थापना हुई है वो ये 60s एंड ऑल में, उस टाइम पे 1949. उस टाइम पे ना हमें उस टाइम, और कॉलेज में हमारे ऑफिशियल था कि आपको फोन नहीं यूज करना है, आपको लैपटॉप भी नहीं यूज करना. इट वाज नॉट, गैजेट्स वर नॉट अलाउड. एंड एट द सेम टाइम दे वांट अस टू पार्टिसिपेट इन ऑल द टेक्निकल सेमिनार्स, वेबिनार्स. उसमें जाओ, आप पार्टिसिपेट करो, प्रेजेंटेशंस बनाओ. इट वाज सो सरप्राइजिंग कि यार ये भी बोल रहे और ये भी करना है. और इससे ये सीखा कि यार रिसोर्स नहीं है तो आप कैसे डेवलप. और एंटरप्रेन्योरशिप में तो यू आर ऑलवेज वर्किंग इन अ वेरी रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट. You never have a resource that you would like to have. I guess that DMET and or MERI or IMU has taught us and is still teaching. अब तो चीजें चेंज हो गई हैं वक्त के साथ साथ. अब मोबाइल फोन भी अलाउ है, अब सब कुछ अलाउड है. बट या उस पर कमेंट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं आपकी जर्नी पे. एंड सो माय क्वेश्चन इज, कॉलेज हुआ, प्लेस हुआ, यू चोज इंजीनियरिंग पोस्ट थर्ड ईयर. No, it's not like that. It does not work like that. What happens is, again, first you complete your degree, then you have to do the both training, deck and engine both. Okay. आपको 12 महीने deck में cadetship करना है और 6 महीने as a 5th engineer you have to sell. Then it's up to you which side you want to go. Okay. So after completing my 18 months of training, I went for the engine. कहाँ पे ट्रेनिंग की तुमने? SCI. I was placed in Shipping Corporation India in my 3rd year. Okay. So immediately pass out होते ही I went on board. How was the placement for your batch? Yeah, I think till that time it was still very very good. Okay. Like एक दो अगर रह भी जा रहे हैं तो means I think वो उनकी गलती होती है. गलती भी नहीं है, कुछ हो जाता है, मे बी कुछ जैसे कुछ नर्वस हो गए इंटरव्यू में, या कुछ यू कैन से कि उस टाइम ये फर्स्ट टाइम था सबके लिए. बट आई थिंक एट द एंड एवरीबडी वाज पास्ड. So you sailed as a deck cadet as well as TME, then you chose path of engineering. Yeah. So after completing your engineering, you sailed with SCI only? Yes, sir. For how many years? I sailed till 2017. 2017? Yes. Till class 2? Yeah, class 2, only one ship. Only one ship. Yeah, that so was. You were only with SCI? Yeah, I was only with SCI. Good. So some good memories then? Yeah, actually. Or bad ones? It's or mixed feeling. Mixed feeling, but to be honest, professionally speaking, I am very very grateful. I think we all should be grateful. We should all be grateful for whatever we have achieved in life or whatever we have not achieved in life. आजकल हम देखते हैं कि लोगों में बहुत डिसकंटेंट रहता है, इवन कॉलेज को लेके. कॉलेज ने मुझे क्या दिया, पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए कॉलेज से. And that is in seniors as well. When we reach out कि आप alumni reunion में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कॉलेज ने मुझे क्या दिया. Art of or like giving back is very important. वो गिविंग बैक की ना फीलिंग अब आप जब तक आप नहीं दोगे तब तक ऊपर वाला भी आपको नहीं देता है.
True. And we should always not keep seeking. And आप एंटरप्रेन्योरशिप में 3-4 साल तुम्हें हो गया, काफी मुझे 15 साल कंप्लीट हो गया इस अगस्त में. ग्रेट. तुम हमेशा बोलता हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट गिविंग इन एंटरप्रेन्योरशिप. आप सामने वाले को क्या दे सकते हो? मेरे बैचमेट्स हो गए, सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हमेशा वो अपनी ही बातें करते हैं. ये मेरा प्रोडक्ट है, ये कर दो, ये. When you are sitting with someone, even business, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको चीजें मिल जाएंगी. तो ये तुमने कब स्टार्ट किया कि 2017 में तुम्हें बनना है एंटरप्रेन्योर? ये कीड़ा कहाँ से लगा कि भाई सेलिंग हो गई अब? क्योंकि चीफ का एग्जाम ना भी अपने में, इट्स जस्ट वन एग्जाम अवे. यू आर टैंकर में सेल कर रहे थे, किसमें? मोस्टली टैंकर्स. बट एससीए में भी है 12,000 से जो चाहिए वो ले लो. हाँ, 12 से 15,000 डॉलर की सैलरी एक प्रमोशन बाद. तो ये तो तुमने बहुत टफ चॉइस रही होगी उस समय छोड़ने पे. कोई फैमिली डिसीजन था या तुम अब सोच रहे थे कि अब अपना कुछ काम करना है? एंड हाउ डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी? क्या ऐसे वैसे उस समय स्टार्ट हुआ कि तुमने 2-3 चीजें की? Okay, so before answering that, I want to tell you that I am little bit of a religious person. मैं थोड़ा फेट में, भाग्य में, वो सब पे ज्यादा विश्वास करता हूँ. क्योंकि जब प्लेसमेंट की भी बात थी, मैं ओपनली बोलता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, मतलब स्टूडियस, इंटेलिजेंट में नहीं था कॉलेज में. अपन एवरेज बंदे थे. अपन खेलने में ज्यादा विश्वास रखते थे, सीखने में, दोस्तों में विश्वास रखते थे. ठीक है, पढ़ाई जितनी जरूरी है क्लियर करने के लिए एग्जाम, वो किया है, वो सब करते थे. बट ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पढ़ाई में. तो इवन क्योंकि जब एससीए में गवर्नमेंट कंपनी है तो कैटेगरी वाइज कैटेगरीज में उनको भी लेने पड़ते हैं. लाइक जनरल कैटेगरी के इतने ही लोग होंगे, तो मेरे से ऊपर भी बहुत धुरंधर लोग बैठे थे. मतलब मैं वन ऑफ द जनरल कैटेगरी में मैं लास्ट था जिसका सिलेक्शन हुआ था. एंड मेरे से ऊपर बहुत अच्छे लोग बैठे थे. तो आई बिलीव कि वो थोड़ा लक था, और कुछ हो सकता है कि मैं बोलने में मैं उसमें कुछ डिफरेंट था. तो वैसे ही कुछ फेट चलते हुए आ रहा लगता है मेरे साथ. तो हुआ ये कि 2017 में क्लास 2 के बाद मैं पहली सेलिंग पे गया. आई थिंक हार्डली 1.5 month पास्ट. तो कुछ करते हुए इंजन रूम में आई गॉट हर्ट इन माई नी. ओके. तो ऐसा हर्ट हुआ कि ना मैं उठ पा रहा हूँ ना मैं बैठ पा रहा हूँ. तो लाइक मुझे इमरजेंसी में साइन ऑफ ही करना पड़ा वहीं पे. Okay. तो देन आई केम टू नो इन द हॉस्पिटल कि मुझे पार्शियल लिगामेंट टियर हुआ है. Okay. नी में. अब लिगामेंट टियर के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट डज नॉट रीजनेट ऑन इट्स ओन. और मैं उस टाइम पे हूँ हार्डली 27-28 साल का. तो डॉक्टर सेड कि ऑपरेशन भी मत करो आप, इट्स नॉट गुड फॉर यू बिकॉज यू आर वेरी वेरी यंग एज ऑफ नाउ. तो बोले क्या करो? बोले कुछ मत करो, फिजियोथेरेपी करो और 2 साल तो कम से कम जहाज को भूल जाओ. तो उस टाइम पे ये ठीक है कि लोन वगैरह सब उतारे ही थे, उतर चुके थे, कुछ ऐसा वो हेडेक नहीं था. बट स्टिल लाइक कोई आपको बोल दे यार यू आर अ सेलर, आपको कोई बोल दे 2 साल को जहाज पे नहीं जाना है, तो करेगा क्या यार आदमी? व्हाट विल यू डू? बट अगेन आई सेड कोई ट्विस्ट ऑफ फेट था यार. तो मैंने कहीं बेलापुर में ही सोचा कि चलो कहीं इंस्टीट्यूट में या पढ़ाना, कुछ भी ऐसे कुछ करता हूँ. दोस्तों से, सीनियर से सलाह मशवरा शुरू किया, सर क्या करूँ. किसी ने सीनियर्स ने रेफरेंस बताया कि वहां चले जाओ, यू टॉक टू दिस गाई, मे बी दे आर हैविंग समथिंग फॉर यू. तो ऐसे करते करते किसी फ्रेंड के साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे ही ज्वाइन किया. और अराउंड दैट टाइम ओनली इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स का COC का रिक्वायरमेंट आया. और एज आई सेड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू SCI, क्योंकि SCI में यार जो चीजें मुझे करने को और सीखने को मिली है, जो टेक चार्ज करने को मिला, आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प मी इन माय श्योर जर्नी. मैंने SCI में एक बाई चांस एक ऐसे ही कुछ था नहीं, तो एक DP शिप किया मैंने, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन. और उस शिप से मैं मतलब इतना ज्यादा इंस्पायर्ड था कि मैं इलेक्ट्रिकल में थोड़ा स्मार्ट हो गया. और ट्विस्ट ऑफ फेट देखो, जब मैं ETO का क्लासेस शुरू किया, मैंने 3-4 लोग मुझे मिले जो सीनियर ETOs थे. मतलब उनका एक्सपीरियंस अब तक का मिला के, नेवी का इंक्लूडिंग नेवी मिला के, मेरी एज से भी ज्यादा था. आई वॉज 28 एट दैट टाइम. उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा था. बट आई टोल्ड देम कि सर ठीक है, हम लोग MMDs को हम लोग ज्यादा जानते हैं, बिकॉज इट विल बी द फर्स्ट टाइम यू विल एवर गो टू MMD. पर हम लोग तो क्लास 4 क्लास 2 जब जाते ही रहते हैं, तो वी नो. तो ऐसे करके मैंने 4 लोगों को कन्विंस किया, 4 में से कि मैं सर आपको मैं पढ़ाता हूँ. तो कुछ
जो भी मिनिमल फीस थी वो मैंने रखी, और उनमें से 2 का क्लियर हो गया। वाह। और 2 का भी वो लोग क्योंकि वो नर्वस हो गए, जवाब नहीं दे पाए। दे न्यू कि क्या है आंसर, क्या देना है। आई टोल्ड देम प्रिसाइजली, बट वो नर्वस हो गए। तो बस वो 4 से ही वर्ड ऑफ माउथ फैल गया, और वहीं से मैंने अपना फिर RS मरीन एकेडमी करके मैंने 2017 के एंड में ऑलमोस्ट फिर मैंने वहां से शुरुआत किया था। सो RS मरीन एकेडमी कितने दिन चली? चल रही है, इट्स स्टिल, मतलब वो मेरा बेबी है, तो वो चलती है, उसमें ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती हैं, है ना, बस वो नाम के लिए। नहीं शिफ्ट है कि अभी बेलापुर में? नहीं, इससे द ऑफिस जहां भी, क्योंकि ऑफिस तो वी ऑलरेडी हैव इन बेलापुर ना, तो उसका नाम वहां रहता है। आई एम नॉट यूजिंग इट, बट वो है कि कुछ क्लोज नहीं करता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटीज में डाल देता हूँ ताकि अकाउंट्स चलते रहे, और कुछ नहीं। बट वो आई वांट टू कीप इट, इट्स माय फर्स्ट प्रोडक्ट, तो मैं उसको रख रहा हूँ। सो 2017 से। और SOS की शुरुआत क्या हुई? तो जो दर्शक देख रहे हैं, जूनियर्स एंड सीनियर्स एंड मैरीटाइम कम्युनिटी, he is founder and CEO of SOS India Private Limited. They are doing something very very extraordinary. मैं खुद ना बोल के उनके ही मुंह से हम सुनते हैं कि SOS क्या करती है। सबसे पहले तो जो SOS का नाम है, वो नाम ही अपने आप में एक जर्नी था। अराउंड 2018 मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो शिप रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व है, तो मैं वहाँ कुछ जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ETO का काम सीजनल है, एक बार हो जाएंगे सारे तो व्हाट विल यू डू। तो जस्ट मैं एक्सप्लोर कर रहा था। आई डिडंट वांट कि मैं वही सेम जो कोई भी होता है कि या तो STCW इंस्टीट्यूट खोल लो या फिर RPSL कंपनी खोल लो। आई डिडंट वांट टू गो टू दैट ट्रैक। मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। तो ऐसे ही शिप रिसाइकलिंग का मुझे ऐसे इंटरेस्ट जागा, तो मैं एक यार्ड में देखने गया, और वहां पर मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी। तो यार्ड कहाँ पे था ये अलंग में है। अलंग जो है भावनगर में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, गुजरात में। और हमारे एशिया में सबसे बड़ा जो स्क्रैप का हब है, शिप रिसाइकलिंग हब उसको बोलते हैं, अलंग है। तो वहां जब मैं गया, मुझे कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी कि यार, जहां पर एज यू सेड नो कि यू शुड टॉक अबाउट गिविंग। तो जब मैं ट्रेनिंग में था, मैं लोगों को एजुकेशन देते हुए आ रहा हूँ, आई बीन ए टीचर, तो मुझे वहां से वो बहुत इंटरेस्ट जागा कि यार, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं या जो भी यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, दे नीड समथिंग मोर, एंड दे नीड समबडी हु नोज शिपिंग एक्चुअली। ओके। तो यहाँ से फिर मैंने प्रॉब्लम्स क्या दिख रहे थे तुमको वहां पे? प्रॉब्लम्स मोस्टली मुझे लगता है कि HSC से रिलेटेड ही है। कोई वर्कर्स के लिए PPEs नहीं है, उनको खुद को नॉलेज नहीं, बिकॉज दैट क्राउड इज वेरी वेरी अनएजुकेटेड। क्योंकि वो ऐसे इंडस्ट्री में कोई पढ़ा लिखा जाएगा भी नहीं ना काम करने, बट एक बेसिक तो उनको भी पता होना चाहिए सेफ्टी के बारे में, कि इस चीज को छुए कि नहीं छुए। क्योंकि कुछ ऐसे हैजार्ड्स होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं लाइक एस्बेस्टोस इज देयर, तो आपको दिखता नहीं है वो, बट इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। इट विल गो इनसाइड यू, इट कैन डिपॉजिट ऑन योर क्लोथ्स। आप घर पे जा रहे हो, आपने कपड़े झड़काए, में भी हो सकता है उसमें एस्बेस्टोस वायर बहुत सारे निकले, में भी आपके फैमिली के किसी इनहेल कर लिए। तो दैट्स एस्बेस्टोस इज अ साइलेंट किलर, एंड इट्स द मोस्ट डेंजरस हैजार्डस मटेरियल as of now in the shipping and the ship recycling industry. कहाँ पे होता है शिप में एस्बेस्टोस? एस्बेस्टोस जो है बेसिकली एक, if you start from the beginning, तो एस्बेस्टोस बेसिकली एक मिनरल है, फाइबर है, जो कि माइनिंग करके निकाला जाता है। उसकी खास बात यह है कि वो स्ट्रॉन्ग बहुत है और रिएक्टिव है, नॉन कंडक्टिव है ना, स्मेल नहीं है उसमें, एसिड से कम रिएक्शन है, वो गीला नहीं होता जल्दी से, इंसुलेशन प्रॉपर्टीज बहुत बढ़िया है। तो इसलिए जहां भी जो भी हाई प्रेशर चीजें रहती है, जैसे कि जहां पर पंप गैस्केट्स का काम है, या फिर हाई टेम्परेचर वाली जो चीजें हैं, इंसुलेशंस हैं, उन सब में एस्बेस्टोस का इस्तेमाल होता है। अभी भी होता है कि पहले होता था? कहने को तो बैन है, अच्छा, बहुत सारी जगह पे, इवन शिप पे भी बैन है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील है, चाइना है ना, और सम इन इंडिया में भी इन प्रिंसिपल एंड इन पेपर्स बैन है, बट मिल जाता है आपको अभी भी। सो अगर हम लोग जाएं कि SOS इंडिया
what does SOS India basically do? आपकी कंपनी अभी क्या करती है? तो SOS basically it stands for Solution Overall for Shipping. तो SOS जो टर्म है जो मैंने आपको सारे ओवरऑल सॉल्यूशन देते हो? ओवरऑल सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं तो कस्टमाइज. आपका की एरिया क्या है? मेरा की एरिया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ग्रीन शिप रिसाइकलिंग. Okay. Green ship recycling consultancy and compliance monitoring on behalf of stakeholders or ship owners, you can say. So what is green ship recycling? आपको you have to make sure कि जो आप ship recycle कर रहे हो, you are making sure कि minimum damage to environment or any person. क्या ये सही term है? Yes, you can say so in a vague manner. The thing is, IMO की तरफ से एक regulation है, Hong Kong Convention. Okay. Okay, so basically, Hong Kong Convention is a guideline. It has got all the guidelines that how the ship recycling should be done. So that is the definition of green ship recycling. As long as you are following the structure of the Hong Kong Convention guidelines, you can call it green ship recycling. Okay. Yeah, so that is green ship recycling. How big is the ship recycling business right now? अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि इंडिया में it has slowed down a little. Yeah, अभी पिछले 2 सालों से I think थोड़ा इंडस्ट्री थोड़ा डाउन चल रही है बिकॉज ऑफ लाइक फ्रेट मार्केट इज वेरी वेरी हाई बिकॉज ऑफ कुछ जो इश्यूज इंटरनेशनल चलते रहते हैं. कभी कोई वॉर चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है. तो फ्रेट मार्केट इज हाई. अगर फ्रेट मार्केट हाई रहेगा तो नोबडी वांट्स टू स्क्रैप द वेसल. तो शिप रिसाइकलिंग मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है. बट इन जनरल इट्स लाइक इट्स वेरी वेरी बिग मार्केट. सो एक तो हांगकांग कन्वेंशन हो गया जी, और हम लोग दूसरी चीज शिप रिसाइकलिंग का ही पार्ट है IHM. Yeah, then other things we do is the other key activity that we do is inventory of hazardous materials. Okay. So Hong Kong Convention से ही IHM की requirement है जो कि सभी ships पे, सभी operational ships पे लागू है. तो we are approved by many ISCS bodies for the IHM service supplier. So basically what happens is in IHM we make visual sampling check plan for the vessel. We take and collect the samples and then we have them tested in the laboratory and then we prepare a final report and submit to the class. So that's called the inventory of hazardous materials. So wherever the hazardous material contained in the ship, it will be mentioned there. Then simultaneously we are doing IMO DCS and EU MRV compliance. Okay. And the thing I am mostly involved in is that we are Department of Industrial Health and Safety Gujarat approved trainers. Okay. Training institute, yeah, you can say training company, or training institute, or trainer, you can say. So up to now we have delivered more than 10,000 hours of training to more than 3,000 workers. Good. Mostly about the ship recycling, working at height, enclosed space rescues, and our USP is hazmat training basically. Wow. Because the workers they are the ones who have to actually front line and engage with those materials. So they should at least know what they are dealing with. And for those of you जो podcast के इस moment तक लगे हुए हैं, and for all the ship managers, ship management companies, shipping companies watching this, keeping all the product and services of SOS aside, Ravi Sharma is an extraordinary hardworking individual, and that I can say in camera because I've seen him working for last 4 to 5 years now. And he comes highly recommended by all the people who have worked with. So if you are watching this podcast and if you need IHM, ship recycling or hazmat training or any services, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा. Do contact him and do give him a chance because he is really, really hardworking and he is going to do something extraordinary as we go forward in our journey of building his organization as well. And we have at DMET Club also, we have full faith in his capabilities. And that's why we want to empower Ravi Sharma and his company and do support and do reach out to him for any query, anything you need for ship recycling, for training. इनकी कंपनी सारी सर्विस देती है. जी. And entrepreneurship in India is a very, very hard journey. So अगर आप लोग देख रहे हो तो आप सपोर्ट करिए, सारे entrepreneurs को सपोर्ट करिए because we are the only ones giving jobs to people of the India. कल कुछ दिन पहले एक बार पढ़ा था कि 12,000 लोग
ले ऑफ की हैं TCS ने, इफ आई एम राइट, एंड वी आर स्टिल हायरिंग. इनकी कंपनी हायर कर रही है, हम भी हायर कर रहे हैं. So if you are not giving chance to entrepreneurs, इंडिया की हालत थोड़ा खराब हो जाएगी. The way big companies are firing people. So do give chance to Ravi's companies as well. And इस जर्नी में और डीप जाते हैं अगर जाना चाहेंगे आप. So I believe you are married and you have a kid as well. Yeah, I have a 5-year-old daughter. 5-year-old daughter. Yeah. So how has that journey been? क्योंकि आपने कंपनी स्टार्ट करने के बाद शायद शादी की, कि पहले शादी पहले कर ली. Okay. First of all, thank you so much for the kind words you used just now. I really appreciate it. And yeah, I really appreciate any support I get. And coming back to your question, yes, it was like मेरे साथ है कि I come from a typical Rajasthani family. And I don't know whether I should say it on the camera. I'm just not saying. हाँ एकदम ऐसे बोल दे. मेरा जो है वो interstate intercaste love marriage है. तो it is very very frowned upon in Rajasthan. But somehow my family when they came to know कि हाँ यार यही रहना है, डॉलर कमा लेते हैं आप, तुझे रहना है, तू डिसाइड कर ले, ठीक है हम लोग खुश हैं. तो I think it all started at the same time. Okay. और कहते हैं ना कि आपकी किस्मत बदलती है धीरे धीरे. तो जब मेरी वाइफ रुचि जब मेरी लाइफ में आई तो वो किस्मत बदली कि मैं शोर पे शिफ्ट हुआ. उससे पहले भी वी वर डेटिंग बट आई यूज्ड टू गो ऑन शिप्स. फिर वही बॉम्बे आएगा, शोर लीव लेके आओ. तो शी वाज बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे. Yeah, she is a NIFT. She was in studying in NIFT Mumbai. Okay. Yeah. So we met there only in Mumbai, and then somehow we clicked, and then we started dating. But still at those times, like I used to go to the ship. So it was hard for her also. It was hard for me also. But then I told you, like why? When we decided that okay, now we should tell our family. और जिसके लिए अपने को टाइम लगेगा क्योंकि कन्विंस करने के लिए मुझे 6 महीना साल लगेगा. राजस्थान में आप गार्ड भी दिया सकते हो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही. Yeah, she was, that was the thing she was scared of the most. कि बस तू when I was going home and I told her मैं बताने वाला हूँ, तो she was like calling me every 5 minutes, texting me कि ठीक हो ना, ठीक हो ना, जिंदा हो ना, like that. तो घर वालों को मुझे पता था 1 साल लगेगा मनाने में. तो हम और वही टाइम पे मेरा ETO वाला भी इतना अच्छा क्लिक किया, तो फैमिली ने भी देखा कि यार अपना कर रहा है, सब ओके है, सब संभाल ले रहा है. Okay, then finally after 1 year they said yes. 2018 you got married. Yeah, 2017 I got. Okay. तो 8 साल हो गया, 5 साल की बेटी है. I guess the journey is extraordinary of being a parent and I guess आपके 2 बेबी हो गए, एक तो कंपनी एंड एक तो you have your own baby. And the amount of nurturing which is required in the company is same. 7 day you are working, कोई रेस्ट नहीं. आसपास दोस्त होते हैं तो अच्छा चीजें थोड़ा आसान हो जाती है. काफी एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा है कि they isolate themselves from friends and family. और मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए. मैंने भी अपने स्टार्टिंग ईयर में बहुत अपने आप को आइसोलेट रखा और वो काफ़ी गलतियां थी. एंड व्हेन आई ओपनड अप विद फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स एक्चुअली फुल्ली सपोर्टेड मी एंड दैट इज वन एडवाइस आई गिव टू पीपल कि आप फ्रेंड्स एंड ये तो शिप पे भी लिखा होता था कि थिंक फैमिली सेफ्टी फर्स्ट. इफ आई एम राइट, काफ़ी साल हो गया मुझे भी गए हुए शिप पे. सो इट इज लाइक सेम थिंग इन लाइफ कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसका इम्पैक्ट के बारे में 1 मिनट सोचो अपने फैमिली के बारे में. और आप नहीं सोचते होगे तो फिर तो वही है ना कि यू आर जस्ट क्रिएटिंग हीराकिरी इन योर लाइफ. और फैमिली सपोर्ट करेगी, आप फैमिली को समझाओगे तो आप 8 years आई गेस यू हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर. आप बैठे हो यहाँ पे, इसका मतलब डन रियली रियली वेल इन लाइफ एंड पीपल एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू. दोज हु हैव वर्कड, जिनके साथ भी तुमने काम किया, दे हाईली रिकमेंड यू. एंड उनकी तरफ से ही मैं तुमको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अभी तक जो सक्सेस मिली. एंड वी सी यू डूइंग रियली रियली वेल इन फ्यूचर एज वेल. हाइज एंड लोज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी हो तो जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक चलता रहेगा. बट आई गेस यू आर एंजॉयिंग दिस जर्नी, तभी 8 साल से इसमें हो. यस, एंड वन थिंग यू मेंशन्ड, मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगा, बट मेरे साथ मैं ज्यादा ही, मेरा बेसिक छोड़ने का रीजन, बहुत सारे रीजन मेरे लिए क्लब हो गए थे. और मैंने टू बी ऑनेस्ट फैमिली को ही थोड़ा ज्यादा चुना, स्पेशली टू बी मेरी वाइफ को. लाइक
सुबह से शाम तक काम करके मैं 6-6:30 बजे में पैकअप करके घर भागता था, क्योंकि मुझे शाम की चाय अपनी वाइफ के साथ पीनी है। फिर जब है और फिर रात का अकेले हो। वो भी है, एग्जैक्टली वो भी है। अच्छा। वो भी साथ में ही करना। हाँ हाँ। तो आई जस्ट लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मुझे मेरा प्रॉपर कंपेनियन उसी में मिल गया। You have to find your partner. It can और be your बहुत wife, it can be आपको एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना होता है। yeah, that लॉट is ऑफ it, man. आज की डेट में मैं देख रहा हूँ लॉट ऑफ मैरिजेस आर फॉलिंग अपार्ट, स्पेशली जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो, क्योंकि कई बार हम प्रोजेक्शन और सपने दिखा रहे होते हैं तो हमारे साथ हमारे कंपेनियन भी वो सपने देखने लगते हैं, एंड व्हेन थिंग्स गो साउथ तो मैंने काफी रिलेशनशिप को टूटते हुए देखा। सो आई गेस यू हैव मैनेज्ड इट वेरी वेल, एंड if I am correct, I met your wife as well during few events, and I believe you are blessed to have her by your side in your journey as well. And so all the best in the relationship front as well. So keep doing that, and keeping your companion happy as you always do. यंग जनरेशन काफी बिजनेस स्टार्ट कर रही है, हमारे समय इतने नहीं थे लोग। सो आई वाज ओनली एंटरप्रेन्योर इन माय बैच। Okay. बहुत समय तक तो अब शायद क्या पता मैं ही हूँ फुल टाइम, क्योंकि हमारा दूसरा बंदा सेलिंग कर रहा है भावनगर Okay. वाला आपका जो दोस्त, Yeah. तो उनकी बीवी ने कमान संभाल ली। एंड सो आप अगर कोई यंग जनरेशन को कोई एडवाइस देना चाहो कि इफ दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, तो व्हाट आर द, क्योंकि कुछ गलतियां तो हम लोग कर चुके थे, अब तो वो एडवाइस हम दे सकते हैं कि जो नए बच्चे ना करें। तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू folks who are starting up and who wants to start up, especially in maritime field? One thing, see, अपने perspective से, but one thing I can suggest from my own journey, कि यार रिस्क तो लेना पड़ेगा। मेरे भी आई थिंक बैच में, कॉलेजेस में, मतलब हमारे वालों में भी कोई नहीं है जो खुद का कुछ कर रहा है या करना चाह रहा है इन द शिपिंग पर्टिकुलरली। फील्ड चेंज करके बहुतों ने बहुत कुछ किया है, शिपिंग में कोई नहीं कर रहा है, जॉब कर रहे हैं। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि यंगस्टर्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार बाकी लोग जो है ना, जो तुम सीनियर्स देख रहे हो, उनके लिए डिफिकल्ट है रिस्क लेना, बिकॉज दे आर वेल सेटल्ड। उनका एक गड्ढा हो गया जिसमें अपने डॉलर जाने चाहिए, अदरवाइज दे कैन नहीं कर रहेंगे वो अपनी लाइफस्टाइल उस लेवल की आगे, ईएमआईज उतने बन गए हैं कि दे कैन नॉट डू एनीथिंग। बट यू आर यंग मैन, अभी शादी नहीं हुई है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, टेक रिस्क। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं ये बोलूँ, डू इट सिंसियरली, एंड एवरीबडी इज लुकिंग, प्रॉब्लम ये आ रही है यंग, जल्दी करना है, शॉर्टकट, इजी मनी, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द इजी मनी मैन, लाइक कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तुरंत मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो तपना तो पड़ेगा। ये मतलब हो सकता है कि हमको ज्यादा तपना पड़ा है, तुमको कम तपना पड़ा, बट आई थिंक कि शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए। तो मेरी एक एडवाइस रहती है, मेरा एक आशीर्वाद रहता है जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, कि तो मैं आशीर्वाद दे देता हूँ कि यू शुड गो थ्रू पेन एंड सफरिंग। इतनी पेन एंड सफरिंग तुमको शुरू में मिल जाए कि तुम आगे के लिए तैयार हो जाए। तो बोलते ये सब श्राप दे रहे हो कि आशीर्वाद। मैंने बोला अगर मुझे ना मिली होती ना ये, तो मैं इतना क्या बोलते हैं मैन ऑफ स्टील ना बन पाता। ट्रू मैन, ट्रू। अगर वो हार्डनिंग नहीं होती फर्नेस में हम लोग की, सबकी, और वो सबकी होती है, जो रोजी पिक्चर रहती है जब नाम के आगे अपना विजिटिंग कार्ड छपवाते हो ₹2 का और सीईओ लिख देते हो, और जब एक्चुअल लाइफ में जाते हो, जब डोर सब लोग मना कर देते हैं, क्या यार पागल हो यार, आईटी निकाले, मर्चेंट नेवी वाले हो, क्या धंधा करने आ गए हो। जब सारे डोर बंद हो जाते हैं तो उस समय यकीन दिलाते रहो कि 15 साल बाद चीजें अच्छी हो सकती हैं, 5 साल बाद और अच्छी होंगी। बट अगर आप गिव अप कर देते हो 2-3 महीने में, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर गेम, इट्स नॉट अ 6 मंथ गेम। कई बार मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट के लोग आते हैं, तो मैं बोलता हूँ 3 साल बाद आना, और 3 साल में वो बंदा 3 महीने में ही अपनी दुकान बंद करके चला जाता है। सो ये एक हमारा भी टेस्ट होता है। लॉन्ग टर्म गोल लेके कोई नहीं चलना चाह रहा है कि शॉर्ट मनी कमा लेंगे, सब कमा लेंगे, एवरीथिंग इज गुड। हम लोग भी कई बार पैसे के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जी, बट इट इज नेवर डाइवर्टिंग अस फ्रॉम ट्रू नॉर्थ। एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द होल इज अ 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर मैराथन है, वो चलती रहेगी। देयर इज नो संडे इन आवर लाइफ। हाँ, आज संडे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं,
आप भी बैठे हो, आप मीटिंग के लिए आए हो भावनगर से, इस पॉडकास्ट के लिए स्पेशली फ्लाई करके आए हो, तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड विल सी यू इन दिल्ली इवेंट एज वेल। एंड हम कोशिश करते हैं कि रवि जी सारे इवेंट में हमारे यहाँ अक्रॉस द ग्लोब, सिंगापुर में नहीं आते, इस बार कोशिश करेंगे कि सिंगापुर और हांगकांग में भी आपको ले जाया जाए। Sure. इवेंट अक्टूबर में ही है, हांगकांग वाला भी 11 अक्टूबर को है। Okay. सो पॉडकास्ट के बहाने अगला है। And for all of you watching till now, we are at the end of the podcast, and we want to thank you, Ravi, for taking out time, and for all those ship managers, shipping company owners watching this podcast. SOS India is a wonderful organization. I repeat, SOS India is a wonderful organization with a wonderful team led by none other than Ravi Sharma. So do give him a chance if he comes knocking at your door. But you can reach out to him on the description box. In this blog also, where the podcast will be linked on YouTube or Insta, on Facebook, everywhere. The phone number, email, all the details are mentioned with the services they provide. Do reach out to him. And thank you once again, Ravi, for the podcast. It was amazing having you here. We'll do more such things. Very topic-wise, we might teach some electrode ETO courses also in future for people joining to become ETO officers. So एक idea मेरे दिमाग में आया है कि आपके साथ ये चीज कर सकते हैं हम लोग आगे चल के. So on that note, we'll end the podcast. So thank you guys for watching, and thank you, Ravi, for being so awesome. Yeah, thank you so much, Pratik, for having me here. It was literally a pleasure coming all the way down. बल्कि जो मैं टायर्ड फील कर रहा था आफ्टर सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू, आई थिंक आई एम मोर रिलैक्स एंड चार्ज राइट नाउ. हाँ, एंड एक मिनट और कर लेते हैं. श्योर मैन, श्योर. So yeah, thank you again for having me. I hope our paths keep crossing again in future, and we do something together. So thank you guys.